of Sundarbans. Have you heard about Sundarbans? No, ma'am. Good evening, Peher. Have you heard about Sundarbans? Good evening, ma'am. Good Yes, evening, ma'am. Beta. I'm going to narrate a story Good evening, ma'am. from the jungle of Sundarbans. Fine. And that tale is the tale from Panchtantra. Panchtantra was set of stories. It's a book of stories. Fine. Which are based upon animals. Fine. And the jungle where all these stories they have happened, that jungle is known as Sundarban. The Sundarban jungle is in West Bengal. West Bengal हमारी बेटा एक स्टेट है. हम लोग सब कौन से कंट्री में रहते हैं? Tell me, in which country do we all live? India. हमारी कंट्री का क्या नाम है? Tell me, what's the name of our country? India. Yes. India. Yes, we all India. say India. India is our motherland. Fine. And in India, we have so many states. Ma'am, India. All of us Ma'am, are India. yes, all of us are staying in different states. हम लोग some of us we are staying in Punjab, some of us we are staying in Delhi, some of us we are staying in Haryana, some of us we are staying in Uttar Pradesh. Fine. There are different states into which India is divided. Similarly, we have a state of West Bengal. West Bengal जैसे पंजाब एक state है, we are staying in Punjab. In the same manner, in the same way, West Bengal भी एक state है. और जो बेटा वेस्ट बंगाल की स्टेट है और उसमें एक बहुत बड़ा जंगल है एंड दैट जंगल इज नोन एज सुंदरबंस. फाइन. एंड द स्टोरी व्हिच आई एम गोइंग टू नरेट यू इज द स्टोरी फ्रॉम द फॉरेस्ट्स और द जंगल्स ऑफ सुंदरबंस. Now, the jungles of Sundarbans or the forests of Sundarbans, they are full of flora and fauna. वहां पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, रिवर्स हैं बहुत सारे जो कि उस जंगल में हैं. So the story is from such type of a forest. Let me share a presentation. Fine. And the name of the story is Monkey and the Crocodile. Is my screen visible to all of you, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The story which I'm going to narrate is the story of the monkey and the crocodile. Fine. Now, this is a beautiful view of Sundarbans forest. Sundarbans jungle. If you can see, it's having beautiful trees. Can you see these flowers जिनको मैं point कर रही हूँ? ये नहीं. Yes, ma'am. इनको हम क्या बोलते हैं पता है? All of you know? What do we call them? We call them dandelions. हम इनको dandelions. आप देखते हो कई बार हवा में छोटे छोटे से फूल जो है वो उड़ रहे होते हैं, उनके साथ सीड्स होते हैं, देखते हो आप लोग? Have you seen? उनको पता क्या बोलते हैं बेटा? Dandelions. क्या बोलते हैं? Yes, ma'am. Dandelions. हाँ. So ये जो dandelions होते हैं ना बेटा, ये हवा के साथ travel करते हैं from one place to another. Similarly, if you see in this jungle, there are so many beautiful flowers, trees, and there's a river also. So once upon a time, let's start with the story. Once upon a time, there was a beautiful jungle named as Sundarban. Fine, with a river in it. Sundar का मतलब खूबसूरत और बन का मतलब जंगल. So Sundarban was a beautiful jungle. Fine. And this beautiful jungle had a river in it. India is full of jungles. One of the jungles is Sundarban. Sundarban means beautiful jungle. And it had a river in it. Now in this river lived a crocodile and the name of the crocodile was Croco. एक बहुत प्यारा सा crocodile रहता था. अब आप कहोगे मैम crocodile भी कभी प्यारा होता है? एक मिनट बेटा, जोश ज्वाइन हुआ? There is no such meeting. आप लीव करके फिर से ज्वाइन करो, किसी और फोन से ज्वाइन करने की कोशिश करो, व्हाट्सएप करो इसको. हाँ, ट्राई करो बेटा एक बार.
Their name. Your screen is not showing. अब ठीक है? Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, so there lived a croco, the crocodile. उस रिवर में बेटा एक क्रोकोडाइल रहता था जिसका नाम क्या था? क्रोको. क्या नाम था बेटा? क्रोको. क्रोको was the name of the crocodile who was living in that river. Now this croco was a crocodile. Crocodile का मतलब मगरमच्छ. क्रोकोडाइल का क्या मतलब है? मगरमच्छ. मगरमच्छ बेटा एक रेप्टाइल होता है जो कि जिसको हम एम्फीबियन भी बोल देते हैं. एम्फीबियन मतलब वो एनिमल जो लैंड पे भी रह लेता है और रिवर में भी रह लेता है. जो क्रोकोडाइल है वो एम्फीबियन है. क्या बोलते हैं हम उसे बेटा? एम्फीबियन. एम्फीबियन मीन्स एन एनिमल जो कि पानी में भी रह ले और लैंड में भी रह ले. ये जो क्रोकोडाइल था, फाइन, और जो एम्फीबियन था इसका नाम था जोश. यू हैव ज्वाइंड? Josh, you have joined? Say yes. Josh, you have joined? Say yes. Okay. Crocodile was living in the river. Fine. And the name of this crocodile was Croco. Now this Croco had become old, weak and feeble. जब ये crocodile young था बेटा, जब ये मगरमच्छ तंदुरुस्त था और अच्छी सेहत में था, तब ये खूब सारे प्रेज जो थे बेटे, खूब सारे शिकार करता था. फाइन. खूब सारे एनिमल्स को मार लेता था. फाइन. और खा के अपना गुजारा कर लेता था. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड दैट दिस क्रोकोडाइल हैज बिकम ओल्ड. फाइन. एंड द नेम ऑफ द क्रोकोडाइल वाज क्रोको. अब जो ये क्रोको था बेटा, कभी रिवर में रहता था, कभी लैंड में रहता था, कभी स्विम करता था, कभी कुछ करता था, but he was not able to hunt. He was not able to find prey for himself. So बड़ा ही वो डिसजेक्टेड और ड्रेन्ड फील करता था. उसे लगता था मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब शायद मैं जल्दी मर जाऊंगा, बिकॉज मैं खाऊंगा कैसे, मैं किस चीज पे सर्वाइव करूंगा. So he used to feel very very bad for himself. Fine. And he used to feel very dejected. Fine. And very bad. But एक बार की बात है. Fine. Croco was finding a prey. Fine. Croco was very very hungry. Fine. And he was finding a prey. तो वो ना आके लैंड पे बैठ गया. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. उसे लगा कि I have become very old. I have become very weak. I cannot hunt. What should I do? Then Croco planned that he should go into the river and catch some fish. उसे लगा कि वो रिवर में जाए, फाइन, और अपने लिए कुछ मछलियां कैच करे, खा ले. So he, went into the river, he swam, and he tried to catch some fish. But every fish he was trying to catch slipped away because he could not focus, he could not concentrate, he had become old. वो जिस भी मछली को पकड़ने की कोशिश करता था, मछली उसके हाथ से निकल जाती थी. क्यों बेटा? क्योंकि जब कोई भी एनिमल या इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बेटा उसकी फोकसिंग की ताकत खत्म हो जाती है. फिर वो एक चीज पे कॉन्टिन्यूसली ध्यान नहीं दे पाता. तो क्रोको के साथ भी यही हुआ. क्रोको रिवर में गया और रिवर में जाके उसने मछलियां पकड़नी शुरू की, बट ही कुड नॉट बी सक्सेसफुल. फाइन. वो पकड़ने लगता था मछली तो मछली फिसल जाती थी उसके हाथ से. अल्टीमेटली डिसजेक्टेड एंड ड्रेन्ड, वो थक गया, बट एक भी मछली नहीं पकड़ पाया. एंड अल्टीमेटली ही केम बैक टू लैंड. आप देख रहे हो इन द पिक्चर, ही केम बैक टू लैंड, और वो लैंड पे, जमीन पे वापस आ गया. एंड देन एज ही वाज वेरी वेरी टायर्ड, he started snoring and he slept. When he slept, fine, suddenly he saw, after getting up, when he slept, after getting up, जब उसकी नींद खुली, उसने देखा कि वो एक ट्री के नीचे सो रहा है. and that tree is a blueberry tree. आप देख सकते हो ट्री पे बेटा बेरीज लगी हुई हैं. नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, वो एक बड़ा खूबसूरत सा ब्लूबेरी ट्री था. उसने देखा, अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक बेरी ट्री के नीचे सो रहा है और बेरी ट्री के ऊपर एक मंकी बैठा हुआ है और मंकी बेरीज खा रहा है. मंकी क्या कर रहा था? मंकी वाज प्लकिंग बेरीज फ्रॉम द बेरी ट्री and was eating. He called monkey, hi.
How are you? Fine. What's your name? Fine. तो Croco ने कहा, हाँ जी बेटा. Yes बेटा. Yes बेटा. Yes मेहर. Ma'am, your screen is not showing. अब Ma'am, your screen is not showing. now is it visible to rest of the participants? Ma'am, your screen is not showing. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's visible. Yes, मेहर, it's visible. आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो. No, ma'am. लीव करके ज्वाइन करो. ये सभी को शो हो रही है बेटा, या मुझे पिन करो. सो उस ट्री पे बेटा एक मंकी रहता था जिसका नाम मैम था, मैंने पहले ही ऐसे ही किया था मैम, तब भी नहीं हुई. इट शुड बी विजिबल बेटा. आप मुझे पिन करो. मैम आपको मैंने पिन भी कर लिया मैम, फुल स्क्रीन भी कर लिया है. आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो प्लीज मेहर. मीटिंग लीव करो, फिर से ज्वाइन करो. मीटिंग लीव करके ज्वाइन करो. ओके. नाउ ऑन दैट ट्री. ओके मैम. हाँ, लीव करके ज्वाइन करो बेटा. ऑन दैट ट्री लिव्ड अ मंकी हु वाज ईटिंग दोस बेरीज, जो कि उन बेरीज को प्लक करके खा रहा था. एंड द नेम ऑफ द मंकी वाज मोनी. नेम ऑफ द मंकी वाज मोनी. क्या नाम था बेटा मंकी का? मोनी. क्रोकोडाइल का नाम था क्रोको. क्रोकोडाइल का नाम था क्रोको और मंकी का नाम था मोनी. सो Moni was living on that berry tree in a jungle. So what Moni used to do was, Moni used to pluck the berries from the berry tree and used to eat them. And as berries are very delicious fruit, very rich fruit, very nutritious fruit, fine, Moni was a very cute monkey. So when Croco saw Moni, who was sitting there, he asked him, "Hi, how are you?" And Moni said, "Hi." Then Croco asked, "What's your name?" Then Moni said, "My name is Moni. I am a monkey and I'm staying on this berry tree. I'm living on this berry tree since so many years. I feed on these berries because I love them. They are very, very sweet and very, very delicious in taste." तो सबसे पहले कन्वर्सेशन किसने शुरू की? क्रोको ने. क्रोको ने कहा, "आप कौन हो? आप कैसे हो?" तो मोनी ने कहा, "मेरा नाम मोनी है, मैं एक मंकी हूँ, मैं इस बेरी ट्री पे रहता हूँ. ये बेरी ट्री जो है, इस पे बहुत ही टेस्टी बेरीज लगती हैं. बेरीज बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं, बहुत ताकतवर होती हैं और मैं इन्हें खाकर जीता हूँ." तो तभी क्रोको को आइडिया आया. उसने मोनी को बोला, "कैन यू गिव मी सम ऑफ दीज बेरीज टू ईट?" क्या आप मुझे ये जो बेरीज हैं ये दे सकते हो खाने के लिए? फाइन, मुझे भी बेरीज खानी है, मुझे बेरीज बड़ी पसंद है. दो एक बात बताऊं, उसने झूठ बोला था, उसने कभी भी बेरीज नहीं खाई थी. बट एज ही वाज वेरी वेरी हंग्री, तो उसने झूठ बोला, कहा मुझे भी बेरीज दे दो. तो मोनी जो था, मोनी वाज अ वेरी काइंड हार्टेड मंकी. मोनी वाज अ वेरी गुड मंकी. मोनी ने क्या किया? मोनी ने बेरीज का एक बंच तोड़ा और क्रोको को दे दिया. उसने क्रोको की तरफ नीचे फेंका और क्रोको ने वो बेरीज खानी शुरू कर दी. And Moni said, "You can eat these berries." तभी Croco, after eating those berries, was feeling relieved and feeling full. Croco को लगा उन berries को खा के उसका पेट भर गया. और Croco को वो tasty भी लगी because they were good, they were delicious. Then Croco said, "Can you give me some more berries to eat?" Then Moni threw some more berries. Croco ने कहा, "क्या आप मुझे थोड़ी सी berries और दे सकते हो खाने के लिए?" तो Moni ने कहा, "ठीक है." तो मोनी ने उसे कुछ और बेरीज खाने को दे दी. तो क्रोको वाज वेरी हैप्पी. उसने मोनी को कहा कि तुम नीचे आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा. वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत भूखा था, तुमने मेरी भूख खत्म की है. आई एम फीलिंग सो गुड बिकॉज ऑफ यू, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम नीचे आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा. आज से हम दोनों दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स. तो क्रोको ने मोनी को कहा कि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तुम चाहो तो ट्री से नीचे आ सकते हो, हम दोनों खेल सकते हैं. फाइन, क्योंकि आपने मुझे बेरीज दी है खाने के लिए और बेरीज मुझे बहुत अच्छी लगी है और बेरीज के कारण मेरी जो भूख थी वो खत्म हो गई है. तो
Moni came down. Moni नीचे आ गया and Croco and Moni became friends and they started playing with each other. Croco took Moni on his tail. जो मोनी था वो क्रॉको की टेल पे बैठ गया और क्रॉको ने उसे इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया. फाइन. क्रॉको ने मोनी को अपनी बैक पे बिठा लिया एंड ही स्टार्टेड गिविंग राइड टू मोनी इन द ट्री. तो मोनी जो था ही वाज एंजॉयिंग दिस राइड ऑन द रिवर, ऑन क्रॉको इन द रिवर. क्रॉको ने उसको अपनी पीठ के ऊपर बिठा लिया बेटा मोनी को और मोनी को उसने घुमाना शुरू कर दिया रिवर में. Fine. And Moni was really enjoying and Croco was really happy because Croco could not hunt. Croco जो था बेटा अब hunting नहीं कर सकता था, prey नहीं कर सकता था, fishes catch नहीं कर सकता था, बूढ़ा हो गया था. तो उसे लगा कि जो मोनी है, मोनी can always pluck berries for him and can feed him. तो that way जो Croco है वो भी जिंदा रहेगा और मोनी को वो जो है राइड देगा, मोनी के साथ वो खेलेगा, मोनी को घुमाएगा फिराएगा. And Moni will also be happy. So that way, their friendship became very, very strong friendship. They became very good friends. Fine. They were helping each other whenever needed. They were playing together. Fine. So soon they became very good and very close friends. And they started discussing their family, their friends, and their lives. जैसे बेटा हम लोग जब अपने friends के साथ बात करते हैं, हम उनके साथ अपनी family discuss करते हैं, अपनी लाइफ डिस्कस करते हैं, अपने दूसरे फ्रेंड्स को डिस्कस करते हैं. तो सिमिलरली क्रॉको और मोनी ने भी अपनी फैमिली एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी शुरू कर दी. तभी क्रॉको ने मोनी को कहा दैट आई हैव अ वाइफ आल्सो हु स्टेज ऑन द अदर एंड ऑफ दिस रिवर, हु स्टेज ऑन द अदर बैंक ऑफ दिस रिवर एंड शी इज आल्सो नॉट हैविंग फूड सिंस क्वाइट सम टाइम. उसको भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा अच्छा सा बहुत दिनों के लिए, बिकॉज I'm not able to hunt for both of us. हम दोनों के लिए शिकार नहीं कर पा रहा हूँ. तो मेरी जो वाइफ है वो अदर साइड ऑफ द रिवर के दूसरे किनारे पे रहती है. फाइन. तो उसको भी ज्यादा कुछ खाने को नहीं मिल रहा. तो मोनी क्या तुम उसके लिए भी बेरीज दे दोगे तोड़कर? क्या तुम उसके लिए भी बेरीज प्लक करके दे दोगे? तो मोनी वॉज वेरी काइंड हार्टेड. ही सेड व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं आपको आपकी वाइफ के लिए भी बेरीज तोड़ के दे दूंगा. तो वो दोनों वापस आ गए रिवर से जंगल में. तो मोनी climbed onto the berry tree and Moni plucked lots and lots of berries. मोनी ने खूब सारी बेरीज तोड़ी, उनको एक लीफ में रैप किया. कैन यू सी बेटा, मोनी ने एक बड़ा ब्यूटीफुल सा लीफ का कोन बनाया, देखा? Yes, ma'am. और उसने बेरीज को फिल कर दिया. He filled that box, he filled that cone with berries. जैसे आइसक्रीम कोन होता है उसमें उसने बेरीज डाल दी. फाइन. क्योंकि उसे लगा कि he is sending these berries as a gift for his friend's wife. उसे लगा कि वो अपने फ्रेंड की वाइफ के लिए, फाइन, तो ये गिफ्ट भेज रहा है, तो he should be wrapping them well. ऐसे फेंकेगा नहीं, उसने प्रॉपर्ली उसे बड़े अच्छे से रैप करके फाइन क्रॉको को दे दिया. तभी बेटा हम जब किसी को कोई चीज देते हैं उसे बड़े अच्छे तरीके से रैप करते हैं, उसे बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप किसी को कोई चीज प्रेजेंट करो, जब भी आप कोई चीज किसी को गिफ्ट दो, उसको बड़े अच्छे तरीके से रैप करो, बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो ताकि उसे अच्छा लगे. सो सिमिलरली what Moni did here was Moni wrapped these berries in a beautiful green leaf and handed them over to Croco. And he said to Croco, now you can take these berries to your wife. And Croco wrapped those berries in his tail. अब आप मुझे बताओ, Croco ने ये जो berries थी अपनी टेल में क्यों रैप की? Croco ने जो berries थी अपनी टेल में क्यों रैप की? Tell me. जिससे वो पानी में बह ना जाए. एक तो बेटा वो इसलिए रैप की, एक तो कि वो पानी में गिर ना जाए, दूसरा बेटा बिकॉज हिज वाइफ वाज स्टेइंग ऑन द अदर एंड ऑफ द रिवर. उसकी जो वाइफ थी वो रिवर के दूसरे एंड पे रह रही थी. फाइन. दूसरे एंड पे रह रही थी. फाइन. और दूसरे एंड तक जाने के लिए उसे स्विम करना पड़ना था. अगर वो अपने हाथ में बैरीज पकड़ता, फाइन, तो वो स्विम कैसे कर पाता? सो व्हाट ही डिड वाज, fine, he curled up his tail and he held those berries in that tail. उसने अपने tail को curl किया और berries को उसमें hang कर लिया. And then he started swimming towards his house.
तो क्रॉको ने स्विम 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 करना शुरू कर दिया रिवर में, और वो रिवर के दूसरे एंड तक पहुंच गया और वो अपने घर आ गया। स्विम करता करता वो अपने घर आ गया। उसकी वाइफ रिवर के दूसरे किनारे पे रहती थी, एंड द नेम ऑफ क्रॉको's वाइफ वाज ज़ूकी। You can see on the screen there is a another crocodile. She is a female crocodile. जो क्रॉको था वो मेल क्रोकोडाइल था और जो ज़ूकी थी वो फीमेल क्रोकोडाइल थी। They were a couple. आप देख सकते हो स्क्रीन पे, there is another female, there's a female crocodile and name of this crocodile is Zuki. जो ज़ूकी बहुत ग्रिडी थी, बहुत लालची थी। वो कभी भी खुश नहीं होती थी, उसको हमेशा लालच लगा रहता था, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। तो क्रॉको came with berries, fine. Croco came with berries, fine, and Croco handed over those berries to Zuki. उसने आके कहा, "Hi Zuki, I've come back home and I have brought these delicious berries for you." मतलब क्रॉको ने कहा, "Zuki, मैं घर आ गया हूँ और मैं आपके लिए बड़ी टेस्टी बेरीज लेकर आया हूँ." तो ज़ूकी ने कहा, "Oh, okay, you're back. Then what? What shall I do with these berries?" उसने कहा, ज़ूकी ने कहा, "ठीक है, आ गए हो तो मैं क्या करूं? मैं इन बेरीज का क्या करूं?" तो क्रॉको ने कहा, "ज़ूकी, these berries are very delicious, and my friend Moni has plucked these berries from a berry tree for you, and they are very good. And since we are not eating anything from a very long amount of time, and you can have these berries." तो क्रॉको ने कहा कि ज़ूकी, क्योंकि हम बहुत दिनों से कुछ भी अच्छा सा नहीं खा पा रहे और मेरा एक फ्रेंड नया फ्रेंड बना है जिसका नाम है मोनी, मोनी ने ये बेरीज प्लक करके दिए हैं मुझे ट्री से आपके लिए, तो आप ये बेरीज खा लो ताकि आप में ताकत आ जाए। तो ज़ूकी ने कहा, ओके। तो ज़ूकी को एक आइडिया आया। ज़ूकी जो थी बड़ी ग्रिडी थी और उसका हमेशा ये होता था उसे कि मुझे हर चीज मिल जाए, हर चीज मिल जाए। तो ज़ूकी ने कहा कि ये जो मोनी है वो कहाँ पे रहता है, वेयर डज दैट मोनी लिव? तो क्रॉको ने कहा, मोनी लिव्स ऑन अ बेरी ट्री and he's feeding on berry trees. He's feeding on those delicious berries, fine, which are being grown on that berry tree. तो क्रॉको ने कहा कि जो मोनी है वो बेरी ट्री पे रहता है और जो बेरीज बेरी ट्री पे लगती हैं वो उन बेरीज को खाकर ही जिंदा रहता है। तो ज़ूकी को एक आइडिया आया। ज़ूकी बड़ी ग्रिडी थी, बड़ी आप कह सकते हो कि बड़ी कनिंग टाइप थी। तो ज़ूकी को एक आइडिया आया, फाइन। ज़ूकी ने सोचा, द मंकी हु इज सर्वाइविंग, हु इज फीडिंग ऑन दीज बेरी ट्रीज, ही मस्ट बी वेरी वेरी डिलिशियस। ज़ूकी को मीट खाना बहुत पसंद था, नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद था। तो ज़ूकी को लगा कि वो क्रॉको को कहेगी कि वो मोनी को पकड़ के ले आए और मैं मोनी को खाऊंगी। क्रॉको वाज वेरी काइंड एंड क्रॉको वाज वेरी इनोसेंट। क्रॉको बहुत भोला था बेटा, चालाक नहीं था, बहुत भोला सा क्रोकोडाइल था। तभी मैंने आपको कहा ना कि क्रॉको एक अच्छा क्रोकोडाइल था। वो सिर्फ अपने खाने के लिए हंटिंग करता था, अदरवाइज उसे कुछ भी पसंद नहीं था, किसी को मारना पसंद नहीं था। तो ज़ूकी जो थी वो भी अच्छी थी, लेकिन उसको अपने लालच के लिए, अगर मान लो उसके पास बेरीज है, फिर भी वो किसी को मार सकती है, यू कैन सी। तो ज़ूकी ने कहा कि ऐसा करो क्रॉको, ये जो बेरीज है ये तो मैं खा लेती हूँ, तुम मोनी को पकड़ के लाओ, गो एंड ब्रिंग मोनी। I want to eat heart of that Moni because Moni's heart will be very very delicious. Moni's meat will be very very tasty because Moni has been feeding on these berries since last so many years. उसने कहा, क्रॉको आप ऐसा करो कि बेरीज में खा लेती हूँ पर आप मोनी को पकड़ के लाओ, क्योंकि जो मोनी है उसका मीट बहुत टेस्टी होगा, क्योंकि मोनी जो है इन बेरीज पे ही फीड कर रहा है बहुत सालों से, उसका हार्ट कितना डिलिशियस होगा। तो क्रॉको को ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिकॉज क्रॉको एंड मोनी वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड क्रॉको वाज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। he tried to make so many excuses. उसने कहा मुझे रिवर के उस पार जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, बट नो, ज़ूकी वाज सो स्टबर्न। ज़ूकी तो अड़ी गई। ज़ूकी ने कहा मुझे मोनी का मीट चाहिए, मुझे मोनी का हार्ट खाना है, खाना है, खाना है। I am determined to eat monkey's flesh. मुझे जैसे मर्जी करके उसका हार्ट लाके दो।
तो क्रॉको वॉज वेरी अपसेट। वो क्या करे बेचारा, क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस जूकी कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, मैं मोनी को नहीं मारना चाहता। तो जूकी ने कहा, अगर तुम मुझे मोनी का मीट या मोनी का हार्ट नहीं लाके दोगे तो मैं मर जाऊंगी। आई विल फिनिश माई लाइफ, आई विल एंड माई लाइफ। उसने उसको थ्रेट किया। जूकी थ्रेटेंड क्रॉको। इन द एंड जूकी थ्रेटेंड, जूकी ने धमकी दी क्रॉको को। उसने कहा कि अगर आप मुझे मोनी का मीट, मंकी का मीट, मंकी का फ्लैश नहीं लाके दोगे तो आई विल फिनिश माई सेल्फ, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, फिर तुम अकेले रह जाओगे। जो क्रॉको था वो अपनी वाइफ को बहुत बहुत प्यार करता था। जैसी भी थी उसकी वाइफ, वो वाइफ थी। सो उसने कहा, ओके यू ईट दीज बेरीज, आई विल थिंक ऑफ समथिंग। मैं जाता हूं और मोनी को बातों में लगा लगू के ले आता हूं। आई विल कन्विंस मोनी टू कम। तो उसने जूकी को बेरीज दे दी। फाइन। उसने कहा, चलो आई विल ट्राई समथिंग, आई विल प्लान समथिंग। फाइन, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। उसने बेटा बेरीज तो दे दी, बट ही वॉज इन अ मैम डायलेमा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। मैम ये हमने पहले मैम ये मैंने सुनी हुई है मैम। वो अपने बैग के ऊपर बिठा के मैम वो मैम क्रोकोडाइल मैम अपने बैग पे बिठा के मैम मंकी को ले आता है। हाँ चलो, अब मुझे बाकियों को कंप्लीट करने दो स्टोरी, ठीक है। तो जो क्रॉको था, मैम ये मैंने भी सुनी हुई है। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो क्रॉको ने क्या किया, क्रॉको ने बैरीज जो थी वो जूकी को दे दी। फाइन। और क्रॉको जो है, ही स्टार्टेड स्विमिंग बैक टुवर्ड्स द जंगल। वो जहां पे मोनी का हाउस था, मोनी के हाउस की तरफ उसने आना शुरू कर दिया। उसने स्विम करना शुरू कर दिया और वो वापस वहीं पहुंच गया वेयर मोनी यूज्ड टू लिव। He reached the same tree, the same berry tree where Moni was living. Now he reached to Moni and he told Moni that, Moni, my wife Zuki wants to meet you. She is very happy with the berries which you have sent for her. मेरी जो वाइफ है, जिस उसके लिए आपने बेरीज भेजी थी, शी इज वेरी हैप्पी विद दोज बेरीज। फाइन, वो उन बेरीज को खाकर बहुत बहुत खुश हुई है एंड शी वांट्स टू मीट यू। तो मोनी वॉज वेरी हैप्पी, मोनी वॉज वेरी काइंड हार्टेड मंकी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि जुकी उसे मार के खाना चाहती है। तो मोनी सेड, ओ रियली, व्हाई शी वांट्स टू मीट मी। तो क्रॉको ने कहा, शी इज प्लानिंग टू होस्ट यू फॉर अ लंच। तो क्रॉको ने उसे कहा कि जूकी जो है आपके लिए लंच बना रही है बड़ा अच्छा सा, एंड शी वांट्स यू टू come with us and have a lunch. She wants you to join us on lunch. वो चाहती है कि आप हमारे साथ लंच पे आओ और हमें ज्वाइन कर। तभी जो मोनी था, मोनी वॉज अ वेरी सिंपल मंकी, काइंड हार्टेड मंकी। फाइन, ही वॉज नॉट कनिंग। He decided, okay, yes, if Zuki is inviting me and Croco is my best friend, I must go and have lunch with them. So he decided to sit on the back of Croco. Fine, and they started sailing towards the Croco's home. Fine, and Monkey was enjoying this ride, and Croco was thinking कि मैं क्या करूं, ये जो मेरा दोस्त है मोनी, उसने मुझ पे ट्रस्ट किया है, he has trusted me and I'm taking him to home. Fine, I'm taking him to home and Zuki will kill him there. What to do? In between, Moni was very excited to go to Croco's home. He asked Croco, what are you planning to feast me in lunch? आप मुझे लंच में क्या खिलाओगे? Then Croco said, you like bananas. All of you know, monkeys, they are very fond of bananas. Monkeys को bananas बड़े पसंद हैं। तो Croco ने कहा, मुझे पता है आपको bananas बहुत बहुत पसंद हैं। Fine, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने Zuki को कहा कि आपके लिए वो बनाना ब्रेड बेक करे और बनाना कुकीज बनाए। वो आपके लिए बड़ी टेस्टी कुकीज बेक कर रही है, बड़ी टेस्टी ब्रेड बेक कर रही है। तो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मोनी बहुत बहुत खुश था कि मुझे बनाना ब्रेड खाने को मिलेगी, मुझे कुकीज खाने को मिलेगी। ही सेड, तो आज तो मजा आ गया, मैं तो इतने मजे में जाऊंगा और मजे से खाऊंगा। वाओ, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। ही सेड, लेट्स गो, हरी अप, जल्दी जल्दी चलो। तो इन बिटवीन, as Croco was a true friend,
क्रोको बहुत अच्छा फ्रेंड था, क्रोको बहुत सीधा इंसान, सीधा मगरमच्छ था, फाइन, बहुत काइंड हार्टेड था, इनोसेंट था। तो उसे लगा कि उसे मोनी को बता देना चाहिए कि उसकी वाइफ की इंटेंशंस क्या है, व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ ज़ूकी। तो ही सेड, मोनी, आई वांट टू टेल यू समथिंग। मोनी सेड, व्हाट? देन क्रोको सेड, माय वाइफ ज़ूकी, actually she's planning to eat your heart. She wants to eat your heart, and she's saying if she will not eat your heart, she will die. That's why I'm taking you home. And Moni was shocked listening to this. After hearing this, Moni was shocked that what is Croco saying? Croco's wife is going to kill him. It means he will die. So एकदम से he had an idea. एकदम से मोनी के माइंड में, मोनी के ब्रेन में एक आइडिया आया. And Moni said to Croco that, Croco, Zuki really wants to eat my heart. And Croco said, yes. She says that if she will not eat your heart, she will die. Then Moni said, actually Croco, I have left my heart on the tree. मैं जिस बेरी ट्री पे रहता हूँ, मैं अपने हार्ट को वहीं रखता हूँ ताकि वो सेफ रहे. अगर मैं अपने हार्ट को इधर उधर अपने साथ लेके चलूंगा तो कोई भी मेरे से मेरा हार्ट छीन लेगा. जो क्रोको था बेटा, वो बड़ा ही सिंपल था. उसे इस बात का नहीं पता था कि बिना हार्ट के तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता. उसने सोचा कि मोनी सच बोल रहा है, तो उसने कहा अब क्या किया जाए. तो मोनी ने कहा, वी मस्ट गो बैक टू बेरी ट्री टू ब्रिंग द हार्ट. मुझे लगता है कि हमें बेरी ट्री पे वापस जाना चाहिए और हार्ट को लेकर आना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट ही नहीं होगा, फाइन, तो ज़ूकी को क्या खाने को मिलेगा. तो क्रोको सेड, अब क्या करें, फिर से वापस जाएं, हम लोग तो हाफ वे आ चुके हैं, वी आर ऑलरेडी हाफ वे ऑफ द रिवर, हम लोग आधा रास्ता तो आ चुके हैं. नाउ व्हाट टू डू, आर वी सपोज्ड टू गो बैक. And then Moni said, yes, if you want to, if Zuki wants to eat my heart, and if you want Zuki to eat my heart, अगर Zuki मेरा दिल खाना चाहती है, मेरे हार्ट को खाना चाहती है, और आप चाहते हो कि Zuki खाए, तो आपको वापस चलना पड़ेगा, because there is no other way. My heart is left on the berry tree. तो क्रोको क्या करता है, क्रोको वापस स्विम करना शुरू कर देता है towards the tree. दोनों फिर से ट्री की तरफ वापस चल पड़ते हैं. They start swimming towards the berry tree and they reach the berry tree. And when Croco and Moni they reach the berry tree, Moni immediately jumps from Croco's back to the tree. Fine, Moni फटाफट से बेटा क्या करता है, क्रोको की बैक से ट्री के ऊपर जंप कर जाता है. तो क्रोको एकदम से देखता ही रह जाता है. तो क्रोको को लगता है शायद वो ट्री पे इसके लिए गया है क्योंकि उसका हार्ट ट्री पे पड़ा है, पर नहीं, मोनी ट्री पे अपनी जान बचाने के लिए चढ़ जाता है. बिकॉज जो क्रोकोडाइल्स हैं वो ट्री पे क्लाइंब नहीं कर सकते, ट्री पे चढ़ नहीं सकते. और ट्री पे चढ़ने के बाद फाइन, वो कहता है, क्रोको, यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द वर्ल्ड. क्रोको को कहता है कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, महामूर्ख हो तुम, जिसको ये ही नहीं पता कि हार्ट के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. कोई ऐसा भी कभी हुआ है कि किसी का हार्ट उसकी बॉडी से बाहर रहे? नो, माई हार्ट इज लाइंग विद मी एंड दिस वॉज जस्ट अ ट्रिक टू कम बैक सेफली टू माई ट्री. नाउ यू विल नेवर गेट माई हार्ट एंड यू विल नेवर गेट दीज बेरीज एंड यू विल नेवर गेट माई फ्रेंडशिप. अब मैं ट्री के ऊपर आ गया हूँ, फाइन, अब ना तो आपको मेरा हार्ट मिलेगा, ना ही बेरीज मिलेंगी, और ना ही मेरी दोस्ती मिलेगी. आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, आपने मुझे मारने की कोशिश की है. यू हैव ट्राइड टू किल मी. नाउ वी विल नेवर बी फ्रेंड्स अगेन. Croco feels very, very dejected. Croco feels very sad. Fine, and Moni starts resting and relaxing on the tree. And ultimately, Croco starts swimming back to his home, feeling very, very dejected, drained, and very sad because he lost his friend, he lost his source of eating, his source of livelihood. बेरीज जो उसे मिलती थी खाने के लिए वो भी गुम गई. फाइन, और जो उसका फ्रेंड था जिसके साथ वो खेलता था वो भी खत्म हो गया.
अब उसके पास कोई चारा नहीं था. Because of Zuki's greed, he lost everything. And he ultimately went back home. Though he underestimated, उसने किसको अंडर किया? मोनी को, कि वो मोनी को अपने साथ ले जाएगा और खा लेगा. लेकिन मोनी जो था, मोनी was a very strong monkey and Moni was a very intelligent monkey as well. तो मोनी ने क्या किया? मोनी वापस आ गया और क्रॉक को जो है उसको घर वापस जाना पड़ा. So that was today's story. Now tell me kids, what moral did you get from the story? What moral did you get from the story? Turn by turn. So first of all, it is Genvisha. Genvisha, all of you, I'm going to ask for the morals. Vivan, switch on your camera, beta. Ruchika, switch on your camera. Joshvi, switch on your camera. अगर कोई हमारे साथ दोस्ती करता है हमें उसको धोखा नहीं देना चाहिए. बिल्कुल, never. We should never betray our friends. हमें कभी भी अपने फ्रेंड्स को बिट्रे नहीं करना चाहिए, उनको धोखा नहीं देना चाहिए. Hamrin, what moral do you get from this story? मैम हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. बिल्कुल, we should not be greedy. हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. Because बेटा, जब हम लालच करते हैं तो जो चीज हमारे पास है हम उसे भी खो देते हैं. Okay, Naira, what moral did you get from the story? मैम हमें अपनी क्लेवरनेस एंड अपनी समझदारी का यूज करना चाहिए. बिल्कुल, हमें अपनी इंटेलिजेंस और अपनी जो है समझदारी, बिल्कुल फाइन, उसका यूज करना चाहिए. इन डिफिकल्टी, बिल्कुल बिल्कुल. वी शुड ऑलवेज एक्ट स्मार्टली. ओके जोशवीर, व्हाट मॉरल डिड यू गेट फ्रॉम द स्टोरी? In times of danger and adversities, we must not get scared. Yes, in times of dangers and adversities, we must not get scared. Fine, and we should act smartly. जब बेटा खतरा आए, जब लाइफ में कुछ ऐसा आ जाए, फाइन, जब लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आ जाए, जब हमें लगे कि हम जो है हम कोई करेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे, तब हमें हमेशा अपने ब्रेन का यूज करके स्मार्टली एक्ट करना चाहिए. ओके, अर्नब बेटा, आपको क्या मॉरल मिला इस स्टोरी से? मैम हमें कभी क्लेवर नहीं होना चाहिए. हमें कभी क्लेवर नहीं होना चाहिए, ज्यादा चालाक कभी नहीं होना चाहिए. वी शुड बी वेरी सिंपल. ओके, पहर, व्हाट मॉरल डिड यू गेट? हेलो मैम हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए. आपने क्रॉको को देखा? पहर इज क्लैपिंग. Look at मैम नो मैम स्क्रीन ही नहीं शो हुई. She is clapping and dancing. right. Okay. Okay, Ruchika, what moral do we get from this story? मैम अगर हम कोई भी बॉन्ड बनाए, वेदर इट्स फ्रेंडशिप, तो हमें वो उसमें पूरी की पूरी ऑनेस्टी रखनी चाहिए. बिल्कुल, जब भी बेटा किसी के साथ दोस्ती करो तो पूरे दिल से करो, वरना मत करो. इट शुड बी ऑनेस्ट एंड रियल. It should be honest and real. जो आपकी फ्रेंडशिप है बेटा, वो फैब्रिकेटेड नहीं होनी चाहिए, वो आपके दिल से होनी चाहिए. फाइन. Now moving next. Bani, what moral do you get from this story? मैम हमें सच्चे फ्रेंड्स को धोखा नहीं देना चाहिए. Yes, we should not betray our friends. Okay, Vivan, what moral do we get from this story? मैम वी हैव टू नेवर बी ग्रीडी. Yes, we should never be greedy. कभी किसी चीज का बेटे लालच नहीं करना चाहिए लाइफ में. आपके पास जो है, you should remain content with that. आपके पास जो है, आपको उसमें खुश रहना चाहिए. Because जो भी हमें मिलता है ना बेटा भगवान जी से, it is more than enough for our life. भगवान जी हमें हर चीज देते हैं. फाइन, हमारी अपनी लाइफ को फुलफिल्ड रखने के लिए, हमारी लाइफ जो को अच्छे से जीने के लिए भगवान जी हमें सब कुछ देते हैं. तो जो हमें वो देते हैं ना बेटे, हमें उसमें खुश और कंटेंट रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, कभी भी ग्रीड नहीं शो करनी चाहिए. मेहर, व्हाट मॉरल डिड यू गेट?
टेल मी मेहर, व्हाट मॉरल डिड यू गेट? मैम हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। यस, दिस इज आल्सो वेरी करेक्ट। मैम हमें किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बेटा हर एक पे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? देखो जो मोनी था उसने किस पे ट्रस्ट किया? मोनी ने बेटा किस पे ट्रस्ट किया? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर नहीं था वो, उसका स्ट्रेंजर नहीं था बेटा, फ्रेंड था, क्रोको था। लेकिन जो जूकी थी वो उसकी फ्रेंड नहीं थी। उसने जूकी की इंटेंशंस पे ट्रस्ट किया क्योंकि जूकी ने कहा था उसको आने के लिए। क्रोको तो उसके साथ हमेशा से था। किस ट्रस्ट किया बेटा? जूकी के ऊपर। उसे लगा कि जूकी उसे क्यों बुला रही है, जूकी उसे खाने के लिए बुला रही है, लेकिन उसके जूकी की इंटेंशंस का नहीं पता था। फाइन, उसने जूकी पे ट्रस्ट किया एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट वो क्रोको के साथ चल पड़ा। बट जो क्रोको था बेटा वो फिर भी काइंड था, भोला था, इनोसेंट था। फाइन, तो उसने उसको बता दिया। फाइन, और जिसके कारण मोनी की जान बच गई एंड मोनी वाज गुड। सो मॉरल इज फाइन, जब हमारे पे डिफिकल्ट टाइम आए हमेशा स्मार्टली एक्ट करो, नंबर 1। नंबर 2, अपने फ्रेंड्स को कभी भी बिट्रे नहीं करो। नंबर 3, वी शुड नेवर बी ग्रिडी, we should never be greedy. So we have got with 3 morals from this story. We have got with 3 morals from this